Good afternoon, everyone. So, uh, I think we are learning a lot in Java. So, let me show you first of all syllabus where we are, what we are doing. So today and I think tomorrow, day after tomorrow, whatever, whenever our lecture comes, we'll see string about string class only. Okay, so that it gets clear to all people. Fine. This is our syllabus. First chapter we already completed. Second chapter, mathematical function, we have seen it's completed. Methods and array we have seen. Now fourth and fifth chapter actually is going on. Fourth and fifth chapter actually are objects and classes. Then again object oriented thinking. So fourth and fifth chapter, we cannot separate it. They are separated, but that's fine. Sometimes we'll learn this string today. We are going to, I think today or tomorrow, we are going to learn this string class and string buffer class and string builder. And next lecture we'll see how to pass this. We are also going to see constant static variable. We have already seen. Okay. These modifiers we have seen, data field encapsulation. Also we need to see how do we pass object to methods. Okay, and then array of object. All these things we will be seeing. So fourth and fifth chapters are interrelated, highly interrelated, and we'll see one by one. We'll see one by one. Okay, fine. So next, I think it will take time to complete fourth and fifth chapter. Next, we'll see 6 to 12 chapter are again very important. Fine. So this is the syllabus. Let me close. Let me start. Yes, e-content material. Oh yeah, yes, Kirtan. I will surely update. Thank you for reminding me. I will upload a presentation whatever I had. Okay, so I will upload all the presentations in e-content. What else you require in e-content? I think presentation I have. I don't have any soft copy of any book right now, but you can search. I think you can get from internet. Yeah, what a presentation and what are materials I have. Even though I have maintained this Word file. I have maintained this Word file with programs and some important notes. So I will also upload this, but I think usually I update this in Word file. So it's not yet ready, but as soon as I complete this Word file, I will upload it. Okay. Anyway, let's start with Java. String. Let's start with Java string. Okay. I think everyone can see. So in Java, string is basically an object that represents sequence of character value. Sequence of character value. Okay, so a string variable. Okay, now an array of character works same as Java string. For example, now you see character ch. What is this? It's a character. Variable we have given, data type is character, and this bracket it defines array, character array. So in character array, we are putting JAVA. But string, in string, it will remain, how do we put this Java in string? So it's simple. String as is equal to new string, and we can put ch. It's the same as this. String as is equal to me of j. Okay, let me correct it like with Java. Okay, the way we put JAVA, the same way we can put Java in string s. Okay, so this line and this line both are same. Whenever we write something here, it occupies some memory. Okay, so what is Java string? It provides a lot of method to perform operations on string such as compare, concat, equal, split, length, replace, compare to, intern, substring, etc. Okay, and what is the java.lang.string class? This class actually implements serializable comparable character sequence interface. Okay, so these are the string class. These implement the serializable comparable character sequence, these interface. Anyway, we don't need to know what is it implements, but string, whenever we write string, it implements, it concerns with this string class. Okay, now see, string, it implements this three
classes. Okay, again we need to see this implements and all this thing, but yeah, hang on for this. We'll compare it. I mean, we'll learn it later on. Anyway, so character sequence interface, actually one of the interface is character sequence. So what is interface? Again, that we need to understand. Okay, so just right now, remember, interface used to replace a sequence of character, string, string buffer, and string builder classes implemented. It means we can create string in Java by using these three classes. Okay, string, string buffer, string builder, these are the three classes. These are implemented using character sequence. Implementation are there in character sequence. कहना क्या चाहता है भाई, ये जो string, string buffer, string builder classes है, उसका implementation character sequence में दिया हुआ है, ठीक है? तो वो ऑटोमेटिकली हम डिराइव करते हैं, तो हम वो डायरेक्टली यूज कर सकते हैं, ठीक है? देखो, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. जावा स्ट्रिंग इज इम्यूटेबल, मींस वी कैन नॉट चेंज इट, ठीक है? डायरेक्टली एग्जांपल से समझते हैं. सबसे पहले मैं एक स्ट्रिंग लेता हूं, स्ट्रिंग k इज इक्वल टू जावा. अभी देखो k में मैं क्या करता हूं, ये एक k मैं डिफाइन कर दिया, उसकी वैल्यू क्या है, जावा. k इज इक्वल टू मैं क्या देता हूं, c, ठीक है? k की वैल्यू मैंने, मतलब अभी मैंने c दे दी, ठीक है? अभी देखो, whenever we change any string, a new instance is created. For mutable string, we can use string buffer and string builder classes. Okay. Variable k is not used. Okay, okay. K is equal to c. Let's print this. System dot out dot println k. Okay, this immutable string, I think we'll first we'll discuss later on. Let's first understand what string in Java and how to create string object. Okay, हाँ, ये ना थोड़ा डिस्कस बाद में करेंगे. एरर क्यों आ गया? अच्छा, ये बाद में करेंगे. पहले छोटा सिंपल वाला स्ट्रिंग से स्टार्ट करता है, बाद में इम्यूटेबल वाला देख लेते हैं, ठीक है? अभी देखो, ये तो हमने समझा कि भाई क्या है. जावा जो हम लिख रहे हैं कैरेक्टर में, ऐसा कैरेक्टर में अगर जावा लिखते हैं, तो अगर इससे हम स्ट्रिंग सेम वे स्ट्रिंग में डाले तो जावा ऐसा हम लिख सकते हैं, ठीक है? ये तो हमने देखा. ओके, इट इज रिपीटिंग, ठीक है? अब व्हाट इज स्ट्रिंग इन जावा? अभी स्ट्रिंग क्या है? इट्स अ सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर. देखो यहाँ पे सीक्वेंस जो दिया गया है, स्ट्रिंग k इज इक्वल टू जावा, sequence of character. But in Java, string is an object that represents sequence of characters. Class is to create string object, ठीक है? अभी देखो, string का object कैसे create करेंगे? दो तरीके से, by string literal and by new keyword. Okay, by string literal and by new keyword. तो string literal कैसे होगा? Simple literal कैसे होगा? देखो मैंने अभी किया, यहाँ पे किया string k is equal to Java, तो string literal से create कर रहा है. तो string literal से create कर रहा है. String as is welcome. So each time you create a string literal, the JVM checks the string constant pool first. अभी देखो, ये थोड़ा अंदर का बता रहा है. देखो, जैसे string literal ऐसा हम create कर रहे हैं, क्या होता है? JVM checks the string constant pool. देखो ये important है, string constant pool. ये string का मैनेज करने के लिए एक pool जैसा बना रहा है इंटरनली. इसमें पहले चेक करेगा. देखो, स्ट्रिंग ऑलरेडी एग्जिस्ट है पूल में, तो क्या होगा? उसका रेफरेंस हमें रिटर्न करेगा. जैसे कि एस इज इक्वल टू वेलकम है, तो उसका रेफरेंस आएगा. अगर स्ट्रिंग एग्जिस्ट नहीं है, तो न्यू स्ट्रिंग इंस्टेंस विल बी क्रिएट प्लेस इन पूल, ठीक है? देखो अभी ये दोनों मैं यहाँ पे कर रहा हूँ. स्ट्रिंग के इज इक्वल टू जावा, स्ट्रिंग जे इज इक्वल टू जावा, ठीक है? देखो ये दोनों में क्या डिफरेंस है? डिफरेंस ये है कि देखो, जावा स्ट्रिंग ऑलरेडी अवेलेबल है, जावा स्ट्रिंग ऑलरेडी अवेलेबल है, ठीक है? तो अभी क्या करेंगे? जे ये जे में इसके लिए कोई नया वेरिएबल, कोई नया मेमोरी लोकेशन नहीं डेवलप करता, ठीक है? इसके लिए कोई नया मेमोरी लोकेशन, कुछ नया ये डेवलप नहीं करता, ठीक है? तो क्या करता है? इसका ही रेफरेंस जो है इसके अंदर डाल देता है, इसका ही रेफरेंस है इसके अंदर डाल देता है,
ठीक है, तो मेमोरी सेव होगी। तो इसके लिए कौन जिम्मेदार है भाई? स्ट्रिंग कांस्टेंट पुल, ये इसके लिए जिम्मेदार है। ठीक है, वो चेक करेगा कि कोई नया, कोई चेक नहीं करेगा। ठीक है, मतलब नया क्रिएट नहीं करेगा। हर एक में देखो ये एक फिगर बाहर से उठा हुआ है, तो देखो स्ट्रिंग कांस्टेंट पुल जैसा है, तो वो दोनों में एक ही रेफरेंस देगा। अगर वेलकम ऐसा लिखा है तो दोनों में एक ही रेफरेंस देगा। ठीक है, देखो अगर उसमें स्ट्रिंग कांस्टेंट पुल में अगर नहीं मिलता है स्ट्रिंग, तो वो क्या करता है, दूसरा वेलकम वाला जो है, मतलब वो क्रिएट कर देगा। ठीक है, नया वाला क्रिएट कर देगा। देखो ये स्ट्रिंग रेफरेंस स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट स्टोर्ड इन स्पेशल मेमोरी एरिया को नोन एज स्ट्रिंग कांस्टेंट पुल, है ना, उसमें स्पेशल मेमोरी एरिया में उसको स्टोर करता है। अच्छा, वाई जावा यूजेस कंसेप्ट ऑफ स्ट्रिंग लिटरल। अच्छा, ये स्ट्रिंग लिटरल, जैसे कि देखो इसको स्ट्रिंग लिटरल बोलता है, जैसे कि ऐसे ही असाइन कर दिया। ऐसा क्यों हम नहीं कर सकते भाई? स्ट्रिंग k इज इक्वल टू न्यू स्ट्रिंग, ब्रैकेट में अगर कुछ भी स्ट्रिंग लिख लेगा। ठीक है, ऐसा क्यों हम नहीं करते जावा? ठीक है, ऐसा क्यों हम नहीं करते? अभी देखो, टू मेक जावा मोर, अच्छा ये वेरिएबल आई, ऐसा क्यों नहीं? To make Java more memory efficient because no new objects are created if exists already in the string constant pool। ठीक है, अगर ऐसा लिखते हैं तो मेमोरी का सेविंग होगा, क्योंकि अगर दो स्ट्रिंग एक बार लिख लिया तो वो चेक करेगा। ऐसा लिखेंगे तो क्या होगा कि हर बार नया ऑब्जेक्ट करेगा, नहीं हर बार हमें मेमोरी एलोकेट करनी पड़ेगी। शायद ये मैंने सिखाया, न्यू से क्या होता है, नया ऑब्जेक्ट नया मेमोरी लोकेशन क्रिएट होता है। In such case, JVM will create a new string object in normal heap memory, ठीक है? And the literal welcome will be placed in the string constant pool, the variable s is equal to object in heap non-pool memory, ठीक है? अभी देखो इसका क्या मीनिंग है? अगर मैंने ऐसा लिख किया, न्यू स्ट्रिंग ऐसा यूज किया, देखो न्यू स्ट्रिंग, तो क्या होगा? देखो ये हीप मेमोरी है, मतलब ये मेमोरी। अच्छा, जावा में जो मेमोरी है उसको बोलते हैं हीप मेमोरी। जावा में जो मेमोरी अलोकेशन जो भी है, मेमोरी जहां से भी ऑपरेट होता है उसको बोलते हैं हीप मेमोरी। अगर मैं न्यू कीवर्ड से करता हूं, मैं न्यू कीवर्ड से करता हूं, तो क्या होता है, वो क्रिएट, वो नॉन पुल स्ट्रिंग कांस्टेंट में वो क्रिएट नहीं होगा, उसके बाहर ही क्रिएट होता है। ठीक है, तो अगर ये चेक करना है तो हम चेक नहीं कर सकते। दूसरा, अगर ये ऐसी स्ट्रिंग आ गई, जैसे कि जावा और एक ऐसी स्ट्रिंग आ गई, तो हम ये इसके लिए और एक मेमोरी ऑक्यूपाई करते हैं। ऐसा नहीं होगा इसका ही रेफरेंस मिल जाएगा। ठीक है, तो मेमोरी की जो बचत है वो नहीं होगी। अभी देखो ये एग्जांपल, ये ठीक है। हाँ भाई, अब तक समझ में आ रहा है भाई? स्ट्रिंग वाला बहुत इजी है, स्टार्ट किया है तो उसके 2-3 लेक्चर होंगे समझना। ठीक है, कोई डाउट है तो चैट बॉक्स में लिख लेना। सर जितना बार न्यू कीवर्ड का यूज करके स्ट्रिंग बनाएंगे उतना बार सर वो उसके बाहर स्टोर होते जाएगा। हाँ, तो वो ज्यादा मेमोरी ऑक्यूपायर रहेगा। ठीक है, अगर ये जावा कीवर्ड ही जावा का ही करना है, अभी जावा वाला ही करना है, स्ट्रिंग जनरेट करा तो एक ही कर दिया, फिर दूसरा वेरिएबल में ऐसे असाइन करते रहो तब भी चलेगा। जैसे कि j इज इक्वल टू k हो गया, तो ऐसे ही असाइन कर दो तो भी चलेगा। ये जावा लिख लो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, इसके लिए कोई मेमोरी नई वाली नहीं आएगी, पर एक ही मेमोरी जो यहाँ पे क्रिएट हुई, तो उसका ही रेफरेंस इसको मिल जाएगा कि भाई ये एड्रेस पे जावा लिखा है, तुम वहीं जाओ। ठीक है, ऐसा बोल देगा। ठीक है, तो न्यू वाले से एक ये डिसएडवांटेज है थोड़ा। हाँ, पर कई बार ऐसा होता है कि मतलब जरूरी होता है कि ऐसा कुछ करना। ठीक है, हाँ भाई, ये कैरेक्टर वाला है, ये एक थोड़ा देख लेते हैं भी कैसे करते हैं। देखो स्ट्रिंग के इज इक्वल टू जावा, अभी वही हम कैरेक्टर से लेंगे, कैरेक्टर सी एच, कैरेक्टर एरे लेंगे। देखो कैरेक्टर सी एच करके मैं एक ही कैरेक्टर असाइन कर सकता हूँ, मैं ऐसा नहीं कर सकता, कोई एरर मुझे देगा। ठीक है, ये मुझे एरर देगा क्योंकि ये देखो बहुत सारा है, कैरेक्टर का साइज एक ही है। ठीक है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, कैरेक्टर एरे बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो कैरेक्टर एरे इज इक्वल टू, मैं क्या करूंगा, k a v a, कैरेक्टर सी एच में मैंने कर दिया। ठीक है, ये
अच्छा सी स्मॉल होना चाहिए, ओके सॉरी। ओके, तो कैरेक्टर एरे मैंने कर दिया। एक भी कर सकते हैं कैरेक्टर में, एरे में, मतलब कुछ भी ले सकते हैं एरे में, ठीक है। अभी क्या है, हाँ अभी देखो ये कैरेक्टर को मुझे एज अ स्ट्रिंग रिप्रेजेंट करना है, मुझे एज अ स्ट्रिंग रिप्रेजेंट, भाई मैं स्ट्रिंग में क्यों लूं, कैरेक्टर में क्यों ना लूं? भाई एडवांटेज ये है कि स्ट्रिंग में बहुत सारी फंक्शनैलिटी है, देयर आर लॉट ऑफ फंक्शनैलिटीज जो हम बार बार यूज करेंगे, इसके लिए स्ट्रिंग में कन्वर्ट होना जरूरी है। तो अगर आगे जाकर छोटा वाला प्रोजेक्ट बनाएंगे या कुछ भी करेंगे तो पता चलेगा स्ट्रिंग में बहुत सारी फंक्शनैलिटी है। तो हम क्या करते हैं, अभी ये देखो मैं नई वाली स्ट्रिंग ले रहा हूँ, स्ट्रिंग ch new इज इक्वल टू स्ट्रिंग ch। देखो ये ऐसे करके मैंने क्या किया है कि ये जो कैरेक्टर एरे था उसको मैंने यहाँ पे स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर लिया, ठीक है। अभी मैं सिंपल इसको प्रिंट कर सकता हूँ, sum.out.println। सबसे पहले मैं करता हूँ ये, बाद में क्या करूँगा, ch new को मैं प्रिंट कराता हूँ। ठीक है, दोनों में भले ही जावा हो पर मेमोरी वाला जो रेफरेंस है दोनों में अलग अलग हो गया, ठीक है। हाँ, और भी S2 मैंने किया और फिर हाँ इसने जो और लिया है तो अभी कोई जरूरत नहीं है, सिंपल है। मैं इसको मैं करवाता हूँ प्रिंट जावा और दूसरा भी जावा ही, ठीक है। मेमोरी वाला देखते हैं, अगर यहाँ पे डीबग में अगर कुछ मुझे मिलता है मेमोरी वाला, लेट्स सी, इस प्रोग्राम को डीबग करके देखते हैं कि मेमोरी वाला अलग से दिखा रहा है नहीं दिखा रहा है, तो पता चलेगा हमें। यहाँ पे डीबग के अभी तो आउटपुट ये आ जाएगा, तो डीबग के लिए और एक वेरिएबल ले लेते हैं, स्ट्रिंग j इज इक्वल टू, उसके लिए भी जावा ले लेते हैं, ठीक है। देखो अभी मतलब दोनों में जावा जावा प्रिंट तो हो गया हमारा, यहाँ पे स्पेस नहीं रखा था। ठीक है, अभी देख लेते हैं वो, सबसे पहले तो मेमोरी वाला जो है और रेफरेंस वाला वो एक इम्पोर्टेंट है। ब्रेक पॉइंट तो ठीक है, यहाँ पे आउटपुट, यहाँ पे टेस्ट रिजल्ट, यहाँ पे ठीक है। सबसे पहले आगे बढ़ते हैं, स्ट्रिंग जावा के का, इसमें क्या है वैल्यू स्ट्रिंग, नहीं इसके बारे में कुछ जानना है तो शो रेफरेंसेस, जावा वैल्यू ही है, तो ठीक है आगे करते हैं। ch है, j वाला करने के बाद व्हाट अबाउट j, ओके आई थिंक उसके लिए कुछ और होगी फंक्शनैलिटी, शायद अभी यहाँ पे रेफरेंस हमें दिखा रहा है। एनीवे तो वैल्यू है जावा, ओके आई थिंक कुछ टाइम मिलेगा तो मैं और सर्च करके मैं आपको फिर बताऊंगा कि रेफरेंस कैसे देखते हैं यहाँ पे। शो विल इज अ प्रॉपर्टी एडिटर अवेलेबल ऑन फॉर्मेट ऑप्शन इन न्यू वॉच, और एक बार मैं छोटा वाला ट्राई करके देखता हूँ। नहीं टाइप सोर्स मतलब देखो स्ट्रिंग वाला है, सोर्स अगर बोले तो ये सोर्स है, ठीक है। यहाँ से स्ट्रिंग का सोर्स यहाँ पे इम्प्लीमेंट किया हुआ है, यहाँ पे आप जा सकते हो। और जो मैं बस एक में काम करता हूँ, जैसे कि k इज इक्वल असाइन कर दिया, तो ये देखो ये बहुत बड़ा वाला प्रोग्राम उसका काम बैकग्राउंड में काम करता है, ठीक है। बहुत बड़ा वाला प्रोग्राम बैकग्राउंड में काम करता है, ठीक है। व्यू एज ए ट्री, नहीं शो रेफरेंस, नहीं अभी
Okay, I think this is not working. हाँ शायद ये रहा. Show references. ये रहा. This value नहीं कहाँ गया k का. इसका भी देख लेते हैं. रेफरेंसेस ये रहा. 113 जावा है और इसका भी देख लेते हैं. शो रेफरेंसेस. नहीं, रेफरेंस तो यहाँ पर अलग अलग आ रहा है. अलग अलग नहीं आना चाहिए. एनीवे इसका रेफरेंस वाला जो है वो बाद में मैं सर्च करके फिर बताता हूँ. ठीक है ना. इससे तो नहीं अभी देखने को मिलेगा. एनीवे लेट मी स्टॉप डीबग. ठीक है आगे बढ़ते हैं. अच्छा तो भाई अभी स्ट्रिंग वाला जो है सिंपल वो क्या करता है भाई, एक ऐसा कुछ एक वैल्यू लेता है और उसके लिए एक मेमोरी एलोकेट करता है. और मेमोरी कहाँ एलोकेट होती है? स्ट्रिंग कांस्टेंट पूल है जो एरिया है हीप मेमोरी में उसमें होता है. ठीक है. न्यू से अलग मेमोरी, सिंपल स्ट्रिंग से सेम, मतलब अगर स्ट्रिंग सेम है तो सेम रहेगा. अभी देखो क्लास मेथड है, मतलब कि स्ट्रिंग में कौन कौन सी मेथड है. तो बहुत सारी मेथड है. ठीक है, बहुत सारी मेथड है. अभी देखो सब मेथड तो हम ट्राई नहीं करेंगे. 4-5 मेथड ट्राई करेंगे. बाकी की मेथड जो है आप खुद से भी कर सकते हैं. और सभी मेथड को मतलब एट द टाइम ऑफ लॉजिक, अगर आपका लॉजिक में ऐसा कुछ चाहिए तो वो भी मेथड हो सकता है. ठीक है. अभी देखो इम्यूटेबल वाला जो हम बोल रहे थे वो अभी देख लेते हैं. In Java, string objects are immutable. String objects are immutable. Immutable simply means unmodifiable or unchangeable. देखो immutable मतलब हम उसको modify नहीं कर सकते. एक बार string का object create हो गया, ठीक है ना, can't be changed but a new string object is created. एक बार string का object created, its data or state can't be changed but अगर नया object बना सकते हैं. ठीक है. ठीक है, ये एग्जांपल है. देखो स्ट्रिंग s इज इक्वल टू सचिन लिया है, s डॉट कॉन्केट तेंदुलकर ले लिया और फिर से s हमने प्रिंट करवा दिया. ठीक है. सो यही प्रोग्राम सिंपल वाला मैं रन करता हूँ. कॉन्केट वाला एक वही है. यहाँ पे मैं निकल देता हूँ. स्ट्रिंग k इज इक्वल टू जावा है. अभी मैं क्या करता हूँ, k देखो ये स्ट्रिंग है. अभी मैं डॉट करूंगा तो जितने भी क्लास है उसका लिस्ट आ जाएगा, कौन सा यूज करना है. तो अभी सबसे पहला वाला देखो यूज, अभी प्रोग्राम मतलब और समझने के सभी थियरी समझने के साथ साथ हम करते रहेंगे. तो कॉन्केट वाला क्या है, दूसरा कोई भी स्ट्रिंग ले लो उसको कॉन्केट कर देगा. उसका कोई भी स्ट्रिंग ले लो कॉन्केट कर देगा. अभी मैं लिखता हूँ जावा प्रोग्रामिंग, मैं सेमीकोलन से करवा दिया. अभी मैं क्या करूंगा, प्रिंट करूंगा. अभी मैं क्या करता हूँ, प्रिंट के. ठीक है, अभी देखते हैं क्या होता है. राइट क्लिक रन. ठीक है, देखो जावा ही आता है. इम्यूटेबल एक बार असाइन हो गया, हम वी कैन नॉट चेंज इट. ठीक है. हाँ चेंज करना तो क्या करना पड़ेगा, के डॉट कॉन्केट इज इक्वल टू स्ट्रिंग. अगर मैं ऐसा करूं जे शायद, तो लेट्स सी जे में मुझे नया वाला में, देखो नया वाला हम क्रिएट कर सकते हैं पर जो पुराना वाला एक बार क्रिएट हो गया उसको हम चेंज नहीं कर सकते. जावा प्रोग्रामिंग. ओके, वी कैन सी द आउटपुट हियर. ठीक है. हाँ भाई ये देखो एस क्यों किसको पॉइंट करता है, ऐसा सचिन को पॉइंट करता है और सचिन तेंदुलकर नया वाला क्रिएट कर दिया. ठीक है. तो मतलब इसको मॉडिफाई नहीं कर सकते. एक बार ऐसा हो गया कांस्टेंट पूल में, हम मॉडिफाई नहीं कर सकते. ठीक है. देखो अभी क्या है, बट if we explicitly assign to the reference variable to refer Sachin Tendulkar object, for example, देखो explicitly मतलब मैन्युअली, जैसे कि देखो k इज इक्वल टू जावा है. अभी मैं मैन्युअली असाइन कर रहा हूं k इज इक्वल टू, देखो ये प्रोग्रामिंग के थ्रू मैंने असाइन करने की कोशिश की. k डॉट कॉन्केट प्रोग्रामिंग के थ्रू असाइन करने की कोशिश की, वो मुझे मना कर देगा, नहीं ये पॉसिबल नहीं है प्रोग्रामिंग के थ्रू.
पर मैं मैन्युअली कर सकता हूँ। मैन्युअली मतलब कैसे, k इज इक्वल टू मैं लिख देता हूँ c, तो मैन्युअली इज पॉसिबल, मैं ऐसा कर सकता हूँ, देयर वोंट बी एनी एरर, ठीक है। एक्सप्लिसिटली मतलब मैन्युअली मतलब हमें खुद से करना पड़ेगा। तो रन करते हैं, देखो अभी सी प्रोग्रामिंग ऐसा आएगा, k डॉट कॉन्केट। अच्छा अब हाँ सी देखो अभी ये भी नहीं होगा, क्योंकि ये भी तो प्रोग्रामिंग के थ्रू ऐसा हो रहा है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मैं करता हूँ और एक वेरिएबल दो, चलो इसको नहीं कमेंट कर देता हूँ अभी, ये चलो अभी समय है। देखो जावा था एक्सप्लिसिटली असाइन किया, ऐसा रहेगा। अभी देखो ये मैन्युअली मैं सी कर रहा हूँ, मैं कोड लिख रहा हूँ ना, तो मैन्युअली हो गया, तो सी को के में असाइन करा तो जावा की जगह पे सी आ गया, तो सी रन हो जाएगा, सी प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। सर वाई स्ट्रिंग इनपुट विथ व्हाइट स्पेस शोज इनपुट मिसमैच एक्सेप्शन, वो तो पता नहीं तुम क्या कर रहे हो, स्ट्रिंग इनपुट व्हाइट स्पेस, ठीक है। ये अभी खत्म हो जाए तो बाद में तुम्हारा स्क्रीन शेयर करके बता दो, ठीक है। के इज इक्वल सी, ऐसा मतलब क्या बोल रहा था कि इम्यूटेबल है, मैन्युअली अगर असाइन करते हैं तभी असाइन होगा, वरना अगर प्रोग्रामिंग के थ्रू अगर कुछ चेंज करने जाए तो वो नहीं कर लेगा चेंज, ठीक है। ये दैट्स व्हाई इट्स इम्यूटेबल। हाँ मैं वही सर समझा, ठीक लेकिन है। चेंज तो हो रहा है सर, पहले के में जावा वेरिएबल था, उसके बाद सी हुआ। अरे वही तो बोला एक्सप्लिसिटली, मैन्युअली मैंने किया तभी चेंज हुआ ना, वो कब का वही बोल रहा हूँ कि मैन्युअली चेंज करेंगे तो हो जाएगा, पर ये देखो प्रोग्रामिंग के थ्रू हो रहा है, वही तो बोला अभी तक। के डॉट कॉन्केट क्या कर रहा हूँ, प्रोग्रामिंग के कॉन्केट क्या है, अंदर की मेथड है ना, मैंने थोड़ी बनाया है, तो कॉन्केट मेथड में अगर यूज कर रहा हूं तो प्रोग्रामिंग तो हुआ ना, तो क्या हुआ, ये इंटरनली हुआ, तो इंटरनली नहीं करना देगा मुझे, यही तो मैंने अभी रन करके देखा। देखो जावा ही प्रिंट हो रहा है, प्रोग्रामिंग क्यों क्यों कॉन्केट नहीं हुआ, वही तो बोला इम्यूटेबल ऑब्जेक्ट है, ये किया मैंने मैन्युअली, मैंने खुद से लिखा, तो ये हो जाएगा। अभी सी प्रोग्रामिंग हो क्या आएगा, अभी समझ में आया। देखो फिर भी देखो सी तो है, मैंने मैन्युअली किया, इम्यूटेबल हो गया। अभी ये प्रोग्रामिंग के थ्रू मैं सी प्रोग्रामिंग कर रहा हूं, देखो पर सी प्रोग्राम नहीं होगा, क्योंकि प्रोग्रामिंग प्रोग्रामेटिकली हो रहा है इंटरनली, वो इंटरनली कनेक्ट करने की कोशिश कर रहा है, पर नहीं होगा क्योंकि इम्यूटेबल है। उसके लिए एक्सप्लिसिटली ऐसे मैन्युअली करना पड़ेगा, तभी उसका चेंज होगा कंटेंट, ठीक है। हाँ अभी, हाँ तो अभी, हाँ वो तो सी तो प्रिंट हो गया, ऐसे वी कैन नॉट डू लाइक दिस। हाँ पर मैंने बोला क्या रास्ता है, उसको और एक ऑब्जेक्ट में असाइन कर दो। हाँ और एक ऑब्जेक्ट हमेशा क्रिएट करते हैं जे, तो जे को प्रिंट कर दो, तो जे में देखो सी प्रोग्रामिंग आ जाएगा, ठीक है। नया वाला ऑब्जेक्ट कर सकते हैं और देखो सी प्रोग्रामिंग आ जाएगा, ठीक है। हाँ भाई, तो भाई रीजन क्या है, ये स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट जो है वो इम्यूटेबल क्यों है, ठीक है। ये एक्चुअली कट गया, एक मिनट, ठीक है। देखो बिकॉज जावा यूजेस concept of string literal, suppose there are 5 reference variable all refer to one object Sachin, ठीक है। if one reference variable changes the value of the object it will be affected to all reference variable, that is why string objects are immutable in java। सिंपल है, ये string k is equal to java लिया, मैं लेता हूं string j is equal to java, मैं लेता हूं और एक string h is equal to java। अभी इसका मीनिंग क्या हुआ कि हर कोई वेरिएबल एक जावा को ही रेफरेंस देता है, मतलब एक बार इसको ये हो गया क्रिएट, ठीक है। अभी जावा जे है तो इसको रेफरेंस देगा, एच है तो उसका रेफरेंस मतलब एक पॉइंटर जैसा, मतलब क्या बोलते हैं कि कौन सा मेमोरी एड्रेस कौन सा इसमें आएगा, तो ये इसका ही आएगा, है ना, ये इसका नया क्रिएट नहीं होगा। तो भाई क्या होता है कि आगे जाके एच ने कुछ मॉडिफाई कर दिया, एच कुछ मॉडिफाई कर रहा है प्रोग्रामेटिकली, एच कुछ प्रोग्रामेटिकली मॉडिफाई कर रहा है, ठीक है। तो क्या होता है, प्रोग्रामेटिकली मॉडिफाई कर रहा है, तो रेफरेंस तो इसका दिया है, अगर मॉडिफाई करने दे रहा है तो मॉडिफाई हो गया, पर जे का रेफरेंस तो जावा है, हमने जावा ही चाहिए, इसके लिए क्या करें, तो पूरा प्रोग्रामिंग बढ़ जाता है, ठीक है। डेटाबेस में आता है डेडलॉक वाला, वो सब करने के लिए कौन से एल्गोरिथम है, ये डेडलॉक मतलब हो गया,
डेडलॉक और उसको क्या बोलते थे वो, रेफरेंस चेंज हो जाता है। ऐसा ही यहाँ पे होगा, मतलब उसके लिए बहुत बड़ा प्रोग्रामिंग चाहिए, है ना। तो उससे सिंपल अच्छा है कि एक नया वाला ऑब्जेक्ट बना लो, ठीक है। सिंपल नया वाला ऑब्जेक्ट बना, उसमें ये डाल दो जो भी चेंज करना है। बाकी ये जो है इनमेटेबल रहेगा, प्रोग्रामेटिकली हम वी कैन नॉट चेंज इट, ठीक है। हाँ हाँ भाई, अभी स्टार्ट करते एक एक मेथड उसकी। 5-6 मेथड हम देखेंगे, बाद में वो स्ट्रिंग बफर और जो स्ट्रिंग है उसके मेन, वो हम देखेंगे, ठीक है। वो भी बहुत इजी है। अच्छा भाई, स्ट्रिंग को कैसे कंपेयर करें, स्ट्रिंग को कैसे कंपेयर करें, ठीक है। देखो दो तरीके से कंपेयर कर सकते हैं, ये याद रखना है, कंटेंट एंड रेफरेंस। देखो कंटेंट मतलब ये जावा और जावा, ये दोनों स्ट्रिंग है तो ये कंटेंट है। दूसरा रेफरेंस मतलब कौन सा है कि जो मेमोरी एड्रेस है वहां पे सेम ही है क्या, ये दो तरीके से हम कंपेयर कर सकते हैं, ठीक है। तो हाँ, तो भाई देखो ऑथेंटिकेशन, देखो इक्वल मेथड है, इट इज यूज्ड इन ऑथेंटिकेशन, यूज इक्वल मेथड सॉर्टिंग एंड रेफरेंस मैचिंग ऑपरेटर, ठीक है। हाँ भाई, तीन तरीके से हम कंपेयर कर सकते हैं, इक्वल्स, इज इक्वल टू, कंपेयर टू। अब भाई इक्वल मेथड जो है, जो कंटेंट को चेक करता है, इक्वल मेथड है कंटेंट को चेक करता है। देखो अभी मैं करता हूं सिंपल, अभी मैं इसको निकाल के, इफ के, देखो स्ट्रिंग लिखा, स्ट्रिंग का रेफरेंस है के डॉट इक्वल्स आ गया, और उसमें देखो ये ब्रैकेट में क्या मांगता है, इक्वल्स, ऑब्जेक्ट ही मांग रहा है, तो मैं दूसरा ऑब्जेक्ट जे लिखता हूं, और इसमें क्या लिखता हूं, सिंपल सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, मतलब कुछ भी है, हेलो हाय। इसका मीनिंग क्या हुआ भाई, ये कंटेंट चेक करता है भाई, इसमें भी JAVA है, इसमें भी JAVA है, ये चेक करेगा। देखो अभी तो रेफरेंस सेम है, मैं दूसरा ऐसा कर के जे इज इक्वल टू, मैं नया ऑब्जेक्ट बना लेता हूँ, तो है ना, अभी चेक होगा, न्यू स्ट्रिंग जे, सॉरी जावा, और इसमें मैं अभी देखो ये इक्वल ठीक रहेगा, क्योंकि ये एक स्ट्रिंग कांस्टेंट पुल में होगा, ये कहाँ होगा, ये कांस्टेंट पुल के बाहर होगा, ठीक है। तो अभी ये चेक करेगा इक्वल, इक्वल ही है, ये कंटेंट चेक करता है, हाँ यहाँ पे जावा, यहाँ पे जावा है, तो हेलो आई प्रिंट कर देगा, ठीक है। सिंपल ये प्रिंट कर देता है, मतलब रन कर देता है, देखो हेलो आई, नीचे वाला जावा सिंपल जे वाला प्रिंट करा रहा है, ठीक है। तो अभी क्या है, हाँ अच्छा उसकी भी मतलब दो मेथड है, देखो एक तो है इक्वल जो हमने देखा, हाँ दूसरा जो है वो ज्यादातर यूज नहीं करते, पर हाँ होता है, जैसे कि ये मैंने लिखा है यहाँ पे कैपिटल में जावा, और मैं यहाँ पे मुझे चाहिए कि भाई जावा ही कंपेयर हो, कैपिटल स्मॉल आई डोंट केयर, तो मैं क्या लिखता हूँ, इक्वल इग्नोर केस, ये सिंपल मैं ये उसका इक्वल इग्नोर केस, तो ये केस इग्नोर हो जाएगा, है ना। ये पहला वाला एक कॉन्केट वाला भी देखा, ये एक इक्वल वाला देख रहे हैं, ऐसा दो तीन मेथड और देखेंगे, और फिर बाद में हम स्ट्रिंग वाला, स्ट्रिंग बफर और स्ट्रिंग वाला है वो देखेंगे, ठीक है। तो ये इग्नोर, हम केस जो है अपर केस लोअर केस वो इग्नोर कर रहे हैं, राइट क्लिक रन, देखो हेलो आई प्रिंट होगा, ठीक है। हाँ इक्वल इग्नोर केस निकाल देते हैं, लेट्स सी क्या आता है, ठीक है। अभी देखो जे एंड जे, एल्स में ये डाल देते हैं, नहीं ये प्रिंट ही नहीं होगा, सिंपल इफ ए है, एल्स नहीं है, तो अगर इफ कंडीशन नहीं है, देखो जावा प्रिंट हुआ, ये कंपेयर नहीं हो रहा है, ये जे कैपिटल है और ये जे स्मॉल है, नहीं कंपेयर होगा, कंटेंट मैच नहीं है, ठीक है। ये हो गया अपना छोटा वाला इक्वल, ठीक है। हाँ अभी देखो इज इक्वल टू, अभी देखो ये क्या करता है, कंपेयर रेफरेंस करता है, वैल्यू नहीं करता, ये रेफरेंस चेक करता है, वैल्यू नहीं करता, ठीक है। तो रेफरेंस कैसे चेक करेगा, रेफरेंस मतलब मेमोरी रेफरेंस, जैसे कि मेमोरी में जो रेफरेंस है सेम है या नहीं है, ठीक है, उसका ही एग्जांपल लेते हैं। देखो के
इज इक्वल टू जे, सही है, क्योंकि रेफरेंस तो दोनों का अलग है। चलो ये प्रिंट कर रन कर देते हैं। नहीं जावा है, देखा, क्योंकि देखो इसका रेफरेंस अलग क्रिएट होता है, इसका रेफरेंस भी अलग क्रिएट होता है ना। पर मैं अगर करता हूं किसके साथ, कंटेंट नहीं चेक किया, इसने रेफरेंस चेक किया, तो मैं करता हूं एच के साथ, इसका रेफरेंस सेम है, हाँ भाई रेफरेंस सेम होगा, तो क्या होगा, अच्छा के इज इक्वल टू एच, अच्छा ये जे कैपिटल है, मैं स्मॉल कर देता हूँ और फिर से रन करता हूँ। अभी येलो आ गया, हाँ अभी ये स्मॉल किया, तो मैं के इज इक्वल टू जे भी करके देख लेते हैं, चलो हम भी गलत ना हो, ठीक है। जावा देखो ये रेफरेंस चेक करता है, ये नया रेफरेंस क्रिएट हो गया है इसका, तो मतलब रेफरेंस ही गलत है, तो मतलब मिसमैच है, तो ये सिंपल इफ लूप में नहीं आ जाएगा के इज इक्वल टू, पर अगर रेफरेंस सही है तो क्या होगा, ये इस लूप में जाएगा और हेलो आई प्रिंट होगा। तो स्ट्रिंग के लिए हम दो, मतलब देखो तीन है, तो ज्यादातर हम इक्वल टू वाला यूज करेंगे, इक्वल टू, इक्वल्स वाला हम यूज करेंगे, ठीक है एवरीवन। हाँ भाई समझ में आ रहा है एवरीवन? यस सर। हाँ ठीक है, तो इक्वल्स वाला हम ज्यादातर यूज करेंगे। ये इक्वल्स वाला हो गया, वैल्यू इक्वल के लिए क्या करेंगे क्या, सर? अगर वैल्यू इक्वल देखना हो कि वैल्यू उसका इक्वल है या नहीं है तो? अच्छा अच्छा वैल्यू तो डायरेक्टली ऐसा लिख लो, जैसे कि मतलब जावा 2 ऐसा आ गया, जैसे ऐसा ही लिख सकते हैं, समझे क्या? नहीं सर। अरे ये जावा 2 ऐसा डायरेक्टली लिख लो, डॉट इक्वल्स ऐसा आ सकता है ना। अभी देखो, अभी तुम्हारा मतलब वैल्यू मतलब किसका, कैसा लॉजिक, मैं जो लिखा है ऐसा लॉजिक है, मतलब क्या कहना क्या चाहते हैं, वैल्यू मतलब डायरेक्टली, वही सर, मतलब दो वैल्यू दिया है तो इक्वल है या नहीं है उसका वैल्यू। अच्छा अच्छा उसके लिए कंपेयर टू है, कंपेयर टू है, मैं आता हूँ वहां पे। हाँ हम कहाँ थे, हाँ एक, हाँ अभी देखो कंपेयर टू क्या करता है, वैल्यूज lexicographically and returns an integer value that describe its first string is less than equal to greater than second string, ठीक है। कंपेयर टू क्या करता है, वैल्यू को वन बाय वन चेक करता है, जैसे कि अभी क्वेश्चन जो आया कि भाई वैल्यू है जे, तो भाई जे को जे के साथ चेक करेगा, ए को ए के साथ चेक करेगा, वी को वी के साथ चेक करेगा, अगेन ए को ए के साथ चेक करेगा, ठीक है। तो ऐसे कंपेयर टू ऐसे वन बाय वन चेक करेगा और स्ट्रिंग में रिस्पॉन्स देगा, किसमें रिस्पॉन्स देगा, स्ट्रिंग में रिस्पॉन्स देगा, ठीक है। अगर दो वेरिएबल है S1 S2 सिमिलर है तो 0, अगर S1 में कुछ ज्यादा है तो पॉजिटिव नेगेटिव देगा, ठीक है। अभी देखो ये तीनों के तीनों वैल्यू है, मैं ले लेता हूं ये हमें आंसर वो वैल्यू में देता है, तो ठीक है मैं डायरेक्टली यहां पे लिखता हूं डबल कोट्स में जावा डॉट कंपेयर कंपेयर टू कहाँ गया, ये रहा, और मैं यहाँ लगता हूँ जावा, ठीक है। तो इसको मैं करता हूँ, इसके अंदर डाल देता हूँ ये इसके में, अच्छा ये तो मैं जो बुलियन देगा मैं सिस्टम डॉट प्रिंटल में डाल देता हूँ, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटल, डाल देता हूँ। देखो इसका आउटपुट देखते हैं, उससे भी हो सकता है इक्वल से भी, देखो 0 मुझे आउटपुट मिला। कंपेयर टू का मीनिंग क्या हुआ कि वन बाय वन चेक करेगा, अगर मैं यहाँ पे कैपिटल कर देता हूँ और फिर रन करता हूँ तो -32 वैल्यू मिलती है, ठीक है। अगर
ये J रखते हैं और यहाँ पे मैं कैपिटल J कर देता हूँ, तो मुझे क्या मिलता है, पॉजिटिव में 32 वैल्यू मिलती है। ठीक है, देखो वैल्यू जानने की जरूरत नहीं है, पर अभी क्या है कि कंपेयर टू 1 बाय 1 चेक करेगा और वैल्यू में आंसर देगा। ज्यादातर हम जीरो में इंटरेस्ट रखते हैं कि ये मैच हो रहा नहीं हो रहा है, और कुछ वैल्यू आई तो हम ऐसे कर देते हैं। जो ये जो क्वेश्चन है ना कि अगर ये रख सकते, देखो ये रख ही लिया है मैंने आराम से, ये डायरेक्ट वैल्यू को भी रख सकते हैं। इसका मीनिंग क्या है कि इनडायरेक्टली इंटरनली क्या होता है, इसको एक असाइन होता है, एक वेरिएबल असाइन ही हो जाता है, एक मेमोरी असाइन हो जाती है, तो उसके साथ ये कंपेयर कर लेता है। ठीक है, तो भाई ये हो गया अपना 3 मेथड। कॉन्केटिनेशन वाला तो हमने कर किया हुआ है, कॉन्केटिनेशन वाला सेकंड प्रोग्राम ही था, वो व्हीकल प्लेट वाला है ना, वो एक सिंपल कॉन्केटिनेशन वाला था। रैंडम वाला से हो सकता है, वो हम बाद में करेंगे थोड़ा। तो कॉन्केटिनेशन वाला जल्दी से देख लेते हैं फटाफट और सिंपल। देखो जावा, इसको कॉन्केटिनेट इसके से करते हैं, डॉट कॉन्केट। जब देखो कॉन्केट में आर्ग्यूमेंट में क्या चाहिए, स्ट्रिंग ही चाहिए, तो हम स्ट्रिंग देते हैं जावा जावा, और इसको प्रिंट कराता है सिंपल। जावा जावा प्रिंट हो गया। अभी क्या करना है, ये जावा डॉट कॉन्केट की जगह पे हम कर देते हैं, देखो प्लस से भी हो सकता है, प्लस से भी हो सकता है, क्या करेंगे, सिंपल प्लस साइन। देखो सेम रिजल्ट आना चाहिए, ये यही प्रिंट होना चाहिए, ये जो कॉन्केट कीवर्ड यूज किया इसकी जगह पे प्लस, तो जावा जावा आ गया। ठीक है, ये रहा अपना स्ट्रिंग वाली मेथड, और उसकी दो मेथड हमने देख ली। ओके, कॉन्केट और फिर इक्वल्स, कंपेयर, फिर इक्वल इग्नोर, और कौन सा था, इज इक्वल टू। ठीक है, और प्लस साइन भी देख लिए। ठीक है, बाकी वाली जो मेथड है और दो तीन स्ट्रिंग बफर वो सब है, वो वी विल डू लेटर ऑन। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर टुमारो विल सी। ठीक है, I think we'll keep up to here. Anyone have doubt, you can write down chat box. If no, then it's fine. Yes, Niyati. Sorry, I think someone has raised their hand. Yes, Udit. Yes, sir. I've Ah. asked a question. Yeah, I don't know actually that question. I don't know what you have done. So how can I answer? Sir, may I present my screen? Yeah, sure. Sure, sir. Let me stop my sharing. Is it visible? No. Yeah, now it's visible. Sir, it's experiment 7. Hmm. Number plate generator, sir. हाँ, कौन से लाइन में आ रहा है? सर एरर तो शो नहीं कर रहा है, क्योंकि जब मैं इसको रन कराता हूँ तो ये इनपुट ले रहा है, बट जब मैं वाइट स्पेस के साथ यूज करता हूँ तो ये एरर दे रहा है, इनपुट मिसमैच एक्सेप्शन। ओके ओके, मैं समझ गया। इसके लिए तुम अगर वेट करो तो अच्छा है, कल हम श्योर टीम सर, वाला भी देख लेते हैं, तो उसके बाद तुम्हें समझ में आ जाएगा। ठीक है, ये श्योर एक्चुअली सर। ऐसा आउटपुट नहीं लेगा, वेट कर लो, कल तक वेट कर लो। ठीक है, तो मतलब सबको समझ में आ जाएगा ये क्यों ऐसा हो रहा है। एनीवे, सो एवरीवन राइट डाउन देयर नंबर्स इन चैट बॉक्स। I think everyone has written their number.
Let me stop recording.